I need the kind attention all of the students, please. DVS शाहपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शाहपुर में लेक्चर सीरीज के हवाले से इंग्लिश जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट है 150 मार्क्स है, इसमें हमारे सिविल की एग्जाम्स में, उसमें कामना सूरी साहब मौजूद है हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर। तो आज ड्यू अपॉलजी ऑन माई साइड आल्सो एंड आई एम आल्सो डिसअपॉइंटेड। मैं बड़ी हिमालय से लफ्ज़ कह रहा हूँ कि आज भी एस्पिरेंट्स के लेट होने की वजह से लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ है 3:30 बजे। वो जैसा ने अपना लेक्चर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा डिटेल बता रहे थे। तो आज टाइम कम रहेगा सूरी साहब का, तो 5:30 PM हमारा टाइम है क्लास क्लोजिंग का, तो 5 हो चुके पहले ही। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 30 मिनट्स में आपने क्लोज करना चाह रहे हैं या इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, क्योंकि फीमेल्स के हवाले से स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप लोगों से। चलें, आज 30 मिनट का लेक्चर है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसके अलावा कि फ्रॉम टुमारो 3 o'clock लेक्चर शुरू कर दिया जाए, बेशक यहाँ पर 10 मिनट्स बैठ जाए, ये मेरे पास नहीं ऑप्शन उससे नुकसान होगा जी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर कामना सूफी टू स्टार्ट दिस लेक्चर। थैंक यू। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Well, students, first of all, I would like to hand over the essays which you wrote, and they are marked, and certain comments are also written on these notes in order to improve your language. And it was the first assignment which was assigned to you in order to check your level of language and also your level of paragraphing and how much you become relevant to the content and material. So accordingly, I have marked, and in order to encourage you, I just gave you encouraging scores as well, because I did not mark it very strictly, but for the upcoming essays and your assignments, of course, there will be the marking up the mark. Okay, so I will not announce the mark because maybe some of you feel a bit less confident because of your marks, but comments are over there. They are very, very much important so that we can remove these issues and you can work better in the next assignment. So, Mr. Albert, it's your assignment over here. Hafiz Abdul Ghaffar. Hafiz Abdul Ghaffar is here. So, you can take it. Mavish is present. Kamal Jafar. Sayyid Shoaib Raza. Nassim Ali. Nassim, you got and Wasif. This is yours. Right. And name is not Mia Adil. Well, students, just keep your essays with you. As you know, we have very short time. और इस टाइम को हम लेक्चर के लिए कंज्यूम करते हैं। आप इन असाइनमेंट्स को घर पे ले जाएं। कल लेक्चर शुरू होने से 5-10 मिनट पहले आप अपने जो इश्यूज हैं इस एसेस में वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Hopefully this clear. Now just put your assignments aside. Mark. They are marked. They are commented, and you can check at home. And tomorrow you can discuss the things from it. Okay, now we'll talk about, after discussing the things on phrase, we are moving towards sentence structure, right? So in English, I have observed that some of you have certain issues, certain problems in sentence structures too. So we must know how many kinds of sentence structures are needed
and how they are used. So we have first of all the kinds of sentences. First one is informative sentence. And you will see for writing essays or for writing any sort of question, 70%, 70 to 90% this type of sentence is used. 72, sometimes in essay there is no other need of any other kind of sentence. Mostly we require it. But as we know that in our competitive exam there are certain other activities apart from essay writing. Just say you have to convert direct into indirect, a whole paragraph or certain sentences, or you have to change the voice of something, or you have to use other structures as well. ठीक है, तो जिसके लिए हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने ही हैं, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग एन एसे, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. I will not write all the types of sentences. Rather, today we'll focus on informative kinds of sentences. Right. इसके लिए हमारे पास informative types of sentences तीन तरह के होंगे. एक को हम कहते हैं complimentary sentence. Second one is active, and the third one is passive. By these three types of sentences, we inform. Informative sentence का मतलब ही क्या है? To provide information. The sentence which contains information is called informative sentence. The purpose is to convey some message to someone. That is informative sentence. ठीक है? तो तीन तरीके हम सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दीज आर द टू सेंटेंसेस जिसमें हम एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. दे मस्ट बी अ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच देयर इज नो एक्शन. दैट्स अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन दीज पार्ट्स. कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस का अगर मकसद कोई एक्शन बताना नहीं है तो इसका मकसद क्या होगा? Hopefully many of you must know the meaning of compliment. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब? उर्दू में अगर हम बात करें जी, की तारीफ करना, लेकिन उसके स्पेलिंग होते हैं COMPLIMENT. ये है LEMENT. इसका मतलब कंप्लीट करना होता है. ठीक है. Complimentary sentence is that in which the information is completed or there is some complement. अच्छा. The purpose of this sentence is to describe one thing, either the status or quality or position. We describe three things with the help of this structure, not an action. हम कहते हैं कि एक्टिव का मकसद भी एक्शन बनाना है. ठीक है. The government provides fund to the needy people to overcome destructive effects of flood. तो हम क्या कर रहे हैं? कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड करना एक काम है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स करती है. इसमें एक एक्शन है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस नहीं कह सकते. वो सेंटेंस जिसमें हम एक्शन नहीं बताएंगे बल्कि स्टेटस बताएंगे. स्टेटस क्या है किसी भी चीज का? फॉर एग्जाम्पल यू से दैट इट इज अ प्लाजा. तो ये जो इट चीज है इसका स्टेटस क्या है? ये प्लाजा है. सो जी, किसी का फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज माय स्टेटस? आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट मरे कॉलेज. सारी स्टेटमेंट्स हैं. अब कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर का स्टेटस बताएं. फॉर एग्जाम्पल आई से दैट दिस इज अ मार्कर. तो इस चीज का स्टेटस क्या है? ये मार्कर. आई से दैट यू आर स्टूडेंट्स और यू आर लॉयर्स. लॉयर्स आपका स्टेटस है. किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का स्टेटस बताया जाएगा, और स्टेटस बताने के लिए हमें एक नाउन की जरूरत होती है. और अगर हमने किसी भी चीज की क्वालिटी बतानी है तो हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं. नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है. तो अगर हम ये कहते हैं कि दिस
बिल्डिंग इज टॉल, तो इस बिल्डिंग का स्टेटस, ये स्टेटस वाइज का ये बिल्डिंग है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इसका फीचर क्या है, टॉल। तो वी आर डिस्क्राइब, जब मैं कहता हूं कि दिस बिल्डिंग इज टॉल, तो क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? देयर इज नो एक्शन, जस्ट यू आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में हम ये फीचर बता रहे हैं। हम कहते हैं इसमें एक्शन नहीं होता, बल्कि ये जो चीज है ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि कोई भी चीज आके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दे। मैं कहता हूँ दिस बिल्डिंग, आप कहते हो क्या है इस बिल्डिंग को, मैं कहता हूँ इस स्टॉल ने आके इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है। जब मैं कहूंगा दिस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, तो इस स्टॉल के बाद आप पूछेंगे नहीं कि क्या, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट विच वी कॉल कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर वी कॉल देम कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस। इसमें एक्शन नहीं है, बल्कि इन चीजों को कंप्लीट किया जाता है, स्टेटस बता के, क्वालिटी बता के, या पोजीशन बता के। फॉर एग्जाम्पल, वी आर इन द हॉल। अब वी हमारा सब्जेक्ट मैटर है और इनकी पोजीशन बताई जा रही है, और पोजीशन बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, इन द हॉल। इन द हॉल क्या है, पोजीशन बताने के लिए हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती है। आप कह सकते हो कि क्लॉक टावर इज इन कैंट, तो क्लॉक टावर का की पोजीशन किधर है, इन द कैंट, राइट। A tower is on the airport, at the airport. The tower is at the airport. The tower की पोजीशन किधर है, at the airport. तो हम क्या करते हैं, at के जरिए, in के जरिए, of के जरिए हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में जरूरी होती हैं। आप कहते हो the topic is about current issue. The topic is अबाउट करंट, कोई एक्शन है इसमें, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस ही है ये, जिसमें एक्शन नहीं है। आप टॉपिक एज अ सब्जेक्ट मैटर दे रहे हो, इस आपने, अच्छा फिर हमने कहा कि ये चीजें बतानी है इन ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट के जरिए। हमारा सब्जेक्ट मैटर ये है, फिर इसके दरमियान हमने क्या यूज करना होता है, इज, एम, आर, ठीक है। ये जो चीज है एट द प्लेस ऑफ वर्ब, हम इसे एक्शन वर्ब तो नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि एक्शन तो है नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो किसकी हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो वो होता है ना जो किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करे। ही इज रनिंग, दे आर टॉकिंग, वहां पे तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये तो किसी वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी नहीं कहेंगे, बल्कि इन्हीं वर्ड्स का क्या स्टेटस हो जाता है, इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। इसका मकसद क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के दरमियान एक लिंक बनाना, क्योंकि ना तो ये किसी की हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई इसमें एक्शन भी नहीं मौजूद है कि ये खुद मेन वर्ब बन जाए, मेन से बाद एक्शन वाला वर्ब बन जाए। वर्ब तो है, वर्ब की जरूरत है, लेकिन इसका मकसद क्या, लिंक पैदा करना। जैसे एक सेंटेंस है, द बिल्डिंग टॉल, टॉल एक इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, दिस बिल्डिंग, और लिंक किसने बनाया है, इसने लिंक बना दिया। तो यहाँ पे ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस के जो वर्ब्स होते हैं वो अब हम देख लेते हैं। हमारा जो वर्ब है वो है प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर यूज करेंगे। इसमें तो डिफरेंस आपको पता है, आई के लिए एम है, बाकी सिंगुलर के लिए जी। लेकिन हेल्पिंग, अब देखिए ना, असल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाइड है। अगर आपको एक पैराग्राफ आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब्स बताएं, और सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज न्यू या दिस बिल्डिंग इज टॉल, तो इसको भी आप एज अ हेल्पिंग वर्ब अंडरलाइन करके नहीं तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब बताएगा, हेल्पिंग वर्ब मींस दिस वर्ड शुड हेल्प अनदर वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये किसी वर्ब की हेल्प ही नहीं कर रहा। कैसे वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा, जब हम कहेंगे दे आर टॉकिंग, और टॉकिंग आया है, वहाँ पे आर ने हेल्प की है। यहाँ पे तो आर किसी की, इज, एम, आर किसी की हेल्प नहीं करता इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया, राइट। तो यहाँ पे लिंकिंग है। हम कहते हैं जब हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी वर्ड
पर्टिकुलरली किसी भी टर्मिनोलॉजी से रिनाउंड नहीं किया जाता। कैसे कोई भी वर्ड रिकॉल किया जाता है? बाय इट्स यूज। इज़एमआर का इस्तेमाल कैसे होगा? इज़एमआर का इस्तेमाल अगर वर्ब की हेल्प के लिए होगा तो तब हेल्पिंग वर्ब करेंगे, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी एक एग्जांपल दी थी कि जब हम कहते हैं दिस बुक इज न्यू, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है बुक के लिए, लेकिन जब मैं कहता हूँ दिस इज न्यू तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे ये प्रोनाउन होता है। आई हैव अ बुक, दिस इज न्यू, तो पिछले सेंटेंस में बुक का जिक्र किया, दिस इज न्यू, तो दिस दो तरह के रोल अदा कर रहा है। कभी एडजेक्टिव बन रहा है बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू रेफर इट, और अगर ये आउट द नाउन इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा तो प्रोनाउन है। तो यही चीज आप इधर समझें कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इज़एमआर हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नो, इज़एमआर हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? जब उनके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब की भी कंडीशंस है। एक्टिव होगा हम इज़एमआर यूज करते हैं, पैसिव होता है तो थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा इज़एमआर के बाद आईएनजी भी नहीं लगती, वो एक्टिव होगा तो लगेगी ना। दे आर टॉकिंग के एक्टिव परफॉर्मर शुरू में है जी। यहाँ पे आप लिंकिंग वर्ब को मेन वर्ब भी कहेंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि अब हमारी बात यहाँ पे आ रही है कि वर्ब क्या है, क्योंकि हम वर्ब ही अभी पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में ये इज़एमआर होता है, पहले मुझे ये बताने दे फिर आपके प्रश्न का। अगर पास्ट हम यूज करते हैं तो यही क्या बन जाते हैं? वॉज वर्ब। और इसको अच्छी तरह आपने यूज करना है कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट यू नीड वॉज, फॉर प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, यू के साथ भी वारी होगा चाहे वो सिंगल ही हो, ठीक है। और अगर फ्यूचर बने तो हम यहाँ पे कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स विल, शैल, कैन, मे, वुड, कुड, उनमें डिफरेंसेस बताऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? अब कहोगे आई विल बी, यू विल बी सिविल जज, तो स्टेटस आपका फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। आई वॉज अ चाइल्ड, तो स्टेटस कौन सा है? पास्ट का है। तो वी आर, ये प्रेजेंट का स्टेटस है, सो वी कैन डिस्क्राइब द स्टेटस अकॉर्डिंग। तो ये मॉडल जो है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिफरेंस लाने से हमारा जो फ्यूचर है उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो विल की जगह पे अगर आप मस्ट यूज कर लेंगे है तो वो भी फ्यूचर, लेकिन उसमें चांसेस हाईएस्ट हो जाएंगे। अब कह दो कि आई मस्ट बी अ जज, बी तो यूज होना ही होना है फॉर डिस्क्राइबिंग द स्टेटस, ठीक है। तो ये स्टेटस के स्ट्रक्चर है, इसमें कोई एक्शन यूज नहीं हो रहा। अच्छा, अब उनकी बात की तरफ जाते हैं कि इज, एम, आर या कोई भी वर्ब, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो वर्ब को हम मुख्तलिफ अंदाज में स्टडी करते हैं। अब देखिए ना, स्ट्रक्चर आया सेंटेंस का, उसमें मुख्तलिफ यूसेजेस आ रहे हैं और उसके अंदर अब क्लैरिटी आपकी ज़्यादा होगी फॉर द स्ट्रक्चर। तो एक्टिव पैसिव तो किया नहीं जा सकता आज, ठीक है। ये सिर्फ नाम लिखे थे कि 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की, ये बाद में हम स्टडी करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? उसमें एक्शन होता है, ठीक है जी। फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस की, बाकी सेंटेंसेस में इसको अप्लाई नहीं करना, एक्शन वाले सेंटेंसेस नहीं है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है। और स्टेटस के लिए, क्वालिटी के लिए और पोजीशन के लिए वो चीजें समझ आ गई कि नाउन हो फॉरन बात। इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए चाहे एडजेक्टिव और प्रपोजिशन हो, इनके बाद कि एक हमारा आ गया सब्जेक्ट मैटर जिसकी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर आ गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब, फिर आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। इन सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट या रिसीवर ऑब्जेक्ट नहीं होती, क्योंकि एक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट की बात आएगी। इसमें हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है जिसने सेंटेंस की इंफॉर्मेशन को मुकम्मल करना है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन द हॉल वी एक सब्जेक्ट मैटर है, लिंकिंग वर्ब जिसने लिंक पैदा किया है इस इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट के दरमियान। और आपने अब पूछा है कि ये फ्यूचर के लिए कैसे? ये लिंकिंग वर्ब अगर हमारा स्टेटस अब का नहीं है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का स्टेटस बताने के लिए हम कोई भी एक मॉडल यूज करेंगे और साथ बी लगाना है।
कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस है, बी कंपल्सरी है, इससे बगैर सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम कहते हैं द टी विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो, ठीक है। द टी विल अवेलेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, हमने यूज कर दिया। हम ये कहेंगे द टी विल अवेलेबल फ्रॉम टुमारो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपने इनके बाद, लिंकिंग वर्ब्स के बाद या इनके बाद आपने स्टेटस या क्वालिटी या एडजेक्टिव या टेक्निकली टर्म ग्रामेटिकली ये हैं, मीनिंग वाइज ये हैं। नाउन के जरिए स्टेटस बताया जाता है, एडजेक्टिव के जरिए क्वालिटी बताई जा रही है। इन ग्रामेटिकल टर्म्स में से जो मर्जी आप इधर यूज करेंगे और फ्यूचर का मीनिंग आपने यूज करना है तो बी लाजमी आएगा, इसके बगैर बी नहीं यूज होगा। और यहाँ पे कोई एक्शन आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं है, डायरेक्टली क्या चीजें आ रही हैं, ये वाली चीजें आ रही हैं। ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है और इसमें ही स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। पहला स्टार्ट समझ लें कहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये बात क्लियर होगी फ्यूचर। अब आपने शायद कंफ्यूजन आ रही होगी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, उनकी डिटेल वर्ब को स्टडी करते हुए आए, ठीक है। वर्ब की कैटेगरीज हैं, ये आपने नोट कर लिया तो मुझे रेज करना है, आइए। अच्छा, वर्ब की टाइप्स हैं। एक तो आप वर्ब को पढ़ते हो आइदर अ वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एक्सिलरी भी कहते हैं। एक्सिलरी का मतलब ही हेल्प करना ही होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी कैटेगरी है आइदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव। इन चीजों को समझ लें, ये प्रैक्टिकली यहाँ पे आप बहुत ज्यादा चीजें इंप्रूव करेंगे वर्ब को यूज करते हुए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव TRANSITIV और इनट्रांजिटिव। थर्ड कैटेगरी हम जो देख रहे हैं वर्ब की या टाइप जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं डायनामिक और स्टैटिक। और फोर्थ कैटेगरी जो है उसमें हम कहते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये 4 टाइप्स हैं वर्ब्स। फाइनाइट, ये डायनामिक, ये बेटा इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। डायनामिक के सामने स्टैटिक लिखा है। मैं अभी वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन वर्ब इज ऑलवेज रिलेटिव टू हेल्पिंग वर्ब। कोई भी वर्ब मेन है, अगर मेन नहीं है तो फिर वो हेल्पिंग है, दोनों में से एक हो। मेन वर्ब का इसके साथ कोई कंट्रास्ट नहीं है, इससे बाद मेन वर्ब का ट्रांजिटिव से कोई कंट्रास्ट नहीं है, मेन वर्ब का डायनामिक से कोई कंट्रास्ट नहीं है, मेन वर्ब का फाइनाइट से कोई कंट्रास्ट नहीं है। मेन वर्ब का किससे कंट्रास्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स कि वर्ब अगर है या तो फिर उसका फीचर है कि मेन होगा या हेल्पिंग होगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो मेन ही है। वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का ना इससे कोई कंट्रास्ट है, मतलब मेन वर्ब से ना हेल्पिंग से, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। दूसरी बात आपको और समझाने के लिए आप क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइंड एंड टाइप। काइंड और टाइप में क्या फर्क है? अमूमन हम एक ही मीनिंग लेते हैं, ठीक है। काइंड और टाइप में फर्क क्या है? टाइप में हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज का डिफरेंस दूसरी चीज से एक स्पेसिफिक नेचर के मुताबिक। ये सारी की सारी आप कह सकते हो दे आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ब, लेकिन ओनली 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। ये 8 टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं है। अब बताता हूं वो कैसे टाइप में डिफरेंस आएगा, जो एक स्पेसिफिक डिफरेंस है। हम कहते हैं कि ऐसा वर्ब
जिसका अपना एक मैसेज होता है, ऐसा वर्ब जो एक मैसेज दे, वो मेन वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो अपना मैसेज नहीं देता। देयर इज नो मैसेज। मैं आपको एक वर्ब की एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं गिव। गिव कहने से आपके माइंड में एक शेप, पिक्चर बनती है। रन, फाइट, ईट, प्ले, ये सारे वर्ब्स कहने के बाद आपके ज़हन में एक स्पेसिफिक पिक्चर ड्रॉ होती है। वो मैसेज है एक्चुअली। अब मुझे बताएं कि मैं एक वर्ड बोलता हूं विल, क्या ज़हन में पिक्चर बनती है? विल इस तरह किया जाता है। तो ये डिफरेंस है कि हाउ अ वर्ब बिकम्स मेन और हेल्पिंग। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास, बाज दफा वो मेन वर्ब बनते हैं और बाज दफा वो हेल्पिंग बनेंगे। लेकिन रूल वही है कि जब कोई भी वर्ब जो दोनों कैटेगरीज में है, चंद ही है, थोड़े से ही, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कौन सा। तो 3 वर्ब्स हैं, एक बी वर्ब है, एक हैव वर्ब है और एक डू वर्ब है। ये 3 वर्ब दोनों फंक्शन प्ले कर लेते हैं, मेन भी बन जाते हैं, हेल्पिंग भी रहते हैं। लेकिन रूल वही है कि जब ये मेन बनेंगे तो इनका मीनिंग होगा, मैसेज कन्वे करेंगे, और जब ये हेल्पिंग बनेंगे तो ये कोई मीनिंग नहीं कन्वे करेंगे, वर्ब का सेंस क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल्स के तहत इसे स्टडी कर लेते हैं। ये जो बी है, आपको पता है बी की फॉर्म्स कौन सी हैं? बी वॉज में, ठीक है, बी, इसको रिमूव कर दूं, जो चीजें लिखी है। अब ट्राई टू ब्रॉडन योर माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना है। हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ वर्ब की 3 किस्में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वर्ब होता है बेस फॉर्म। Base verb is a verb in which nothing is attached. It's a pure verb. It's a root verb. Root जिसे कहते हैं ना, जड़। बाकी जितने भी verbs हैं वो इस base form से निकलते हैं। Rest of the verbs are derived from this verb. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम कहते हैं कि word है speak, speak base है, इसमें कुछ भी अटैच नहीं हुआ। अब एक होती है फर्स्ट फॉर्म, जिसे आमतौर पर हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म जो है उसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ओके, वी कैन से, मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट फिगर। तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हमेशा 2 शेप्स रखती है एटलीस्ट। फर्स्ट फॉर्म की हमेशा 2 शेप्स होती हैं, स्पीक प्लस स्पीक्स। सेकेंड फॉर्म पास्ट है, ये है स्पोक। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, स्पोकन। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म का क्या नाम आपने रखा है? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, GING वाली वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव इज इक्वल टू 2 प्लस बेस। ING फॉर्म तो होगी स्पीकिंग, और टू स्पीक
ये होगी इंफिनिटिव। So you got 6 different categories. जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म की 2 शेप्स है, स्पीक और स्पीक्स। जब भी फर्स्ट का नाम आएगा, प्रेजेंट का नाम आएगा, हमारे पास 2 कैटेगरीज बन जाएंगे। जी क्या पूछना है? अच्छा दोबारा सुनना है। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम प्रेजेंट है, उसकी कितनी शेप्स है? 2। सेकंड फॉर्म जिसका नाम पास्ट है, जस्ट लाइक स्पोक, एग्जांपल आपके सामने है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ये है स्पोकन। फिर है फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फोर्थ कह लें या आईएनजी कह लें, मैंने फोर्थ भी लिखा हुआ है, फोर्थ बल्कि आईएनजी। अच्छा, और उसे आईएनजी फॉर्म हम कह रहे हैं, राइट। फिर एक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है? 2 प्लस फर्स्ट बेस फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी ये हो गई बेस। एक बेस है, इन्फिनिटिव है, 2 तो ये फॉर्म होगी। एक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ये होगी। टोटल कितनी फॉर्म्स आ गई? 6 आ गई कि नहीं आ गई? जी, एक बेस फॉर्म है, एक फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, आप कह रहे हो कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तो एक ही होती है, यही आपके जहन में कंफ्यूजन होगी ना, अब वो दूर करना चाह रहा हूं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम फर्स्ट फॉर्म में कहा कि इसमें कितनी शेप्स होती है? 2 शेप्स होती है। एक है एस और ईएस वाली शेप, और एक है एस और ईएस के बगैर वाली शेप। ठीक है, एस और ईएस वाली कोई भी शेप, और एक एस और ईएस के बगैर वाली शेप। जब हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम है। जैसे अब बॉय है, वो सिंगुलर है। 4 चीजें होगी, तो आपने एस और एस वाली फॉर्म यूज करनी है। और जब हमारा सब्जेक्ट मैटर इन सब्जेक्ट के अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स हो, बॉय नहीं बल्कि बॉयज, स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, तो फिर हमने एस और एस के बगैर फॉर्म यूज करनी है, राइट। इसके लिए एक ही टेंस होता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस है, और उसके लिए ये रूल्स है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम वी नीड एस और ईएस फॉर्म, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रह गए हैं वो क्या है? आई, वी, यू, दे, 4 ये चीजें और प्लस प्लूरल नेम्स, हमने एस और ईएस के बगैर वाली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि बेस फॉर्म क्या है। बस बेस फॉर्म को क्लियर करता हूं, फिर कल यहां से स्टार्ट करेंगे हम। बेस फॉर्म क्या है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, मैं आपके सामने एक सेंटेंस यूज कर रहा हूं। The doctor recommended that she stop smoking. ये सेंटेंस आप देख लें। The doctor recommended that she stop smoking. यहां पे आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? ऊपर सेटिंग है, नीचे पर ये रिकमेंडेड आ गया है। वैसे तो अगर पास्ट को मद्देनजर रखें तो ये स्टॉप होना चाहिए सेकंड को, या अगर मैं इसे रिकमेंड्स कर दूं तो फिर आप कहोगे कि इसे स्टॉप
होना चाहिए, क्योंकि ही शीट सिंगुलर के लिए हम एसओएस वाली फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे हमें बेस फॉर्म चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हमें बेस फॉर्म चाहिए होती है, चाहे ही शी इट सिंगुलर नेम प्लूरल जो मर्जी सब्जेक्ट हो, हमने एस और एस वाली फॉर्म यूज नहीं करनी। अब आपको इस सेंटेंस का रूल बता देता हूं। अगर सेंटेंस के दो हिस्से हों और पहले हिस्से में रिकमेंड, रिकमेंडेशन, रिकमेंडिंग वर्ड आ जाए, उसके अगले पार्ट में अगली क्लास का जो मर्जी सब्जेक्ट हो, जैसे शी हो, ही हो, जो मर्जी हो, उसके बाद हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है? बेस यूज करनी है। कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ सकता, विल भी नहीं आप यूज कर सकते, शुड भी नहीं यूज कर सकते, सेकंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते। इसका टेंस क्या बन जाता है? न्यूट्रल। बेस का मतलब ये न्यूट्रल फॉर्म। रूल क्या बताया है? जब एक हिस्सा, पहला हिस्सा जिसमें रिकमेंड, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड, इस तरह का रिकमेंड की कोई भी फॉर्म आ जाए, नाउन की फॉर्म में, वर्ब की कोई भी फॉर्म आ जाए, अगले हिस्से में हमें ये नहीं देखना कि रिकमेंडेड पीछे पास्ट है, आगे भी पास्ट यूज करो। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्म चाहिए? बेस फॉर्म चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस फॉर्म की अपनी एक हैसियत है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म में गड़बड़ नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ एक ही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, ठीक है? उसका एक ही टेंस होगा। इधर क्लासेस का यूज हो गया है, समझ आ गई है? तो आपने ज़हन में क्या बैठाना है कि बेस फॉर्म का एक अलग वजूद है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्यों? एस और यस वाली इसके साथ, इन सब्जेक्ट के साथ, बगैर एस और यस इनके साथ। फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म्स का सिर्फ एक ही टेंस है। वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जबकि बेस फॉर्म के बेशुमार यूसेजेस हैं, बेस फॉर्म के बेशुमार यूसेजेस हैं। एक यूसेज आपको अभी बताया है, रिकमेंडेड वाला। इसके अलावा भी बेस फॉर्म्स लगती हैं। तो जब हमें पता होगा कि इस टेंस में बेस फॉर्म चाहिए, इसका मतलब है फिर ही आ जाए, शी आ जाए, जो मर्जी सब्जेक्ट आ जाए, आपने एस और यस वाली फॉर्म नहीं यूज करनी। इसलिए मैंने वर्ब को पढ़ाते हुए आपसे कहा था माइंड को ब्रॉड करना है। जो पास्ट मतलब पीछे आपने जो कुछ पढ़ा है कि जिसमें सिर्फ हम सिंपल करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल। ओके, जहां भी हमें मिस्टेक्स आएंगे। तो यहां पे हम स्टॉप कर रहे हैं और इसी बात से दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन अभी हमने किसमें डिफरेंस देखा है? बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, और दोनों का अलग अलग वजूद है। फर्स्ट फॉर्म की दो कैटेगरीज होती है, एस और यस वाली फॉर्म और एस और यस के बगैर, और उसका टेंस सिर्फ एक ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और उसका मकसद क्या होता है? टू डिस्क्राइब द रूटीन। ये जब मकसद होगा टू डिस्क्राइब अ हैबिट या डिस्क्राइब अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये तीन पर्पज होते हैं। अब मुझे बताएं, इस सेंटेंस में ना तो रूटीन बताई जा रही है, ना हैबिट बताई जा रही है, ना ही यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है। नहीं, हैबिट करनी तो नहीं है ना। स्टॉप को देखिए, स्टॉप की हैबिट है। हमने तो वर्ब को देखना है क्या है। इससे मुराद क्या है? उसकी एडवाइस है, ठीक है? तो ये तो कोई रूटीन है। हम बाकी चीजों को मेन वर्ब की हैबिट देखते हैं, वो वर्ब एज अ हैबिट हो। यहां पर कोई हैबिट ही नहीं है। हैबिट है कि जो चीज आपने बार बार करना हो। तो स्टॉप इधर मेन एक्शन है ना, राइट? सो बिकॉज लैक ऑफ टाइम एंड शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।